Good morning to all. I am Mohammad Navees sir and welcome to Pajandar Junior College Bahur, Department of Sociology. We already started a topic, segments of Indian society. In that, we have to see the third part of the topic, that is the urban community. One of the definition of the urban community is given by the Merriam-Webster dictionary. We have to write the definition on the blackboard. So definition is by the Merriam-Webster. So here is the definition. Definition is a society that is typical modern industrial civilization, means the society is depend on the industrial civilization, and that is also a modern. And heterogeneous. Heterogeneous means different peoples are living in the one society, that is a heterogeneity. In culture, tradition, emphasis secular value. The values of that society is a secular, that is not depend on the religion, that is not depend on the caste, and that is not depend on the gender, and that is individualized with folk culture, and that is the peoples of the urban community are living in the individual life. So here is the definition. Now we start the characteristics of urban community. I think that is not seen in the video.
characteristics of urban community. In that, various of the characteristics are given in our textbook. The first is heterogeneity. Heterogeneity. What is the meaning of heterogeneity? Heterogeneity is the peoples are living the different life to the others. There is a urban community is the community the peoples are living from the different religions, different castes, different occupations. They are wear the different clothes. They are living in the different culture. That is the heterogeneity are found in the urban community. That is one of the characteristics of the urban community. The heterogeneous peoples are living in one society. That is a heterogeneity. Now next is high density of population. In urban area, the many of the peoples and many of the persons are living in one area. There is a small geographical place, but the many of the peoples are living in single place. That is a high density of populations are found in the urban area. You have to see that the many of the peoples are living in single area, and there is a huge persons and huge peoples are living in one area. That is become the density of population. And we have to see that in urban area many of the peoples are living in one area. That is a high density of population, one of the characteristics of the urban community. Next is different occupations. We are seeing the first characteristics, that is the heterogeneity. That is also in the occupations also. The peoples are living in the urban area, they have the different occupation. In rural community we have to see that the peoples are depend on the only agriculture and profession based on the agriculture. But now here the peoples are the belonging from the different occupations. Some of the engineers, some of the doctors, some of the teachers, some of the company workers, and some of the businessmen, some of the tradings. The different occupations peoples are living in single area. So this is one of the characteristics of the urban community. Next is large scale social mobility. Social mobility means peoples are up down from one place to another place. You have to see that in the cities many of the peoples are for the work up and down from one place to another place. They have the various transportations options, buses, metro rail, local trains, etc., etc. And the many of the peoples are socially mobilitated by one place to another place. That is a large scale social mobility we are seen in the urban community. Next is secondary relations. Secondary relations also seen in the
urban community. Peoples are live the life the personally and individually. They are not want to anyone interfere in his or in her life. So the relation is not face to face or not a contactable. They are living in the relation with the secondary relation. Only the formal relations are maintained in the urban community. Next is market based economy. Now in the urban community, the peoples are living in that place for the availability of market. So the market is main purpose of the urban community. Market is easily available and the economy is going on the pedal of the market. So there is a totally depend on the market. So we have to say that is economy is totally depend on the market. So the characteristic is market based economy is one of the characteristics of the urban community. Next is advanced infrastructure. The infrastructure is very advanced in the urban community. We have to see that the very big shopping malls, very big buildings, the well equipped road, the metro train, the locals. After that we have to see that there is a gas pipeline, internet connectivity, electricity, all the things are available in the cities or urban areas. That is the infrastructure is very high. So we have to say that is the advanced infrastructure are found in the urban community. Next is nuclear family. We are known that in the urban community the houses is so small, so there is no possibility to peoples are living in the joint family. That is one of the reason the people are living in the nuclear family, and the peoples are want the freedomness. That's why they are also living in the nuclear family and they are not want to live in the joint family. So one of the characteristics is the nuclear family of the urban community. Peoples are not have the big houses or big home that are maintain the joint family, and one of the that is the individualism is also the reason the peoples are living in the nuclear family. After that, class consciousness. Class consciousness also found in the urban community. Peoples are want to live in the our class, means the upper class peoples are living in the bungalows and the big buildings. The middle class peoples are living in the apartment, and lower classes peoples are living in the jhopapatti or other areas. So there is the class consciousness also seen in the urban community because of the peoples are want to live in our class. The upper class peoples are want to live in the upper class, middle class peoples are want to live in the middle class, and lower class peoples are want to live in the lower class. So their class consciousness also seen in the urban community. Next is formal social control.
the social control is only the formal in the urban community, because of peoples are want to live in the freedom, that's why they are not want to interfere, anyone interfere in his life, in her life, that's why the social control is only formal. The police and the court are taking the charge on the urban community, but the other peoples like a rural community, the peoples are formally socially controlled to the society, but here in the urban community the peoples only are formal social control, they are only formally social control the society. Now next one is complex division of labor. The division of labor is very complex in the urban community, because of the so many peoples are want to take the job from in the companies and in the IIT and the other employment, so that's why the peoples are very normally found the job, so the complex division of labor are found in the urban community, because of so many peoples are available for the jobs, so companies also giving the jobs on the skills and on the educations, so that's why we have to see the one of the characteristics of the urban community, there is a complex division of labor are seen in the urban community. So here the characteristics are completed. Now for Urdu. हिंदुस्तानी समाज का तारुफ, ये सबक की हम शुरुआत कर चुके थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है शहरी बिरादरी। शहरी बिरादरी की एक तारीफ मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में दी गई है, जो काफ़ी अच्छी तारीफ है, इसे आप लिख लेंगे। ऐसा समाज जो जदीद सनतियाना तौर पर हो और जो अलहदा रहना पसंद करता हो, और जो अलहदा रहना पसंद करता हो, और जिसके ख्यालात सेक्युलर हो और सकाफत मुनफरद हो, उसे हम शहरी समाज कहते हैं। शहरी समाज कहते हैं। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है शहरी बिरादरी की खुसूसियात। शहरी बिरादरी की बहुत सारी खुसूसियात हैं, जिसमें से पहली जो खुसूसियत है वो है अलहदगी। शहरी बिरादरी के लोग अलहदा रहना पसंद करते हैं और अलहदगी में ही ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शहरी बिरादरी के लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग अलग अलग पेशों से मुंसलिक होते हैं। उनका रहने का तरीका, उनकी सकाफत, उनके कपड़े पहनने का तरीका हर किसी से मुश्तरक होता है, हर किसी से अलहदा होता है और वो अलहदगी में ही ज़िंदगी गुजारते हैं। यहाँ पर एक जैसे या यकसानियत जैसे हमें लोग कम दिखाई देते हैं और कोई भी अपनी ज़िंदगी अलहदा तौर पर ही जीना पसंद करता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अलहदगी शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। अगली खुसूसियत जो है इसे कहेंगे हम
गुंजान आबादी। शहरी इलाकों में आमतौर पर गुंजान आबादी दिखाई देती है। कम जोग्राफियाई इलाके में बहुत सारे लोगों का रहन सहन होता है, इस वजह से यहाँ पर छोटे घर और गुंजान आबादी ज़्यादा दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा लोग हमें शहरी इलाकों में दिखाई देते हैं, जबकि देहातों में हमें कम अफराद दिखाई देते हैं। जबकि शहरी बिरादरी में एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा अफराद का मजमुआ होता है और इसी को हम गुंजान आबादी कह सकते हैं, जो शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। मुख्तलिफ पेशे। शहरी बिरादरी में ज़्यादातर लोगों के पेशे मुख्तलिफ होते हैं। जिस तरह से हमने पहली खुसूसियत देखी अलहदगी, इसी का एक ये हिस्सा है कि शहरी बिरादरी में ज़्यादातर लोगों के पेशे मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ पेशों में ही लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि देही बिरादरी में लोगों का पेशा ज़राअत और ज़राअत पर मबनी पेशे हैं, लेकिन शहरी बिरादरी में ज़्यादातर लोग कोई उस्ताद का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई इंजीनियर का काम करता है, कोई कंपनियों में काम करता है, कोई तिजारत का काम करता है। इस तरह से मुख्तलिफ पेशे लोग अपनी ज़िंदगी में अपने सरमाए के लिए करते हैं। इसी वजह से ये एक खुसूसियत है शहरी बिरादरी की कि यहाँ पर लोगों के पेशे मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद बड़े पैमाने पर नकलो हरकत। बड़े पैमाने पर नकलो हरकत। शहरी बिरादरी में बड़े पैमाने पर नकलो हरकत देखी जा सकती है। एक जगह से दूसरी जगह लोग अपने पेशे के लिए, अपने काम के लिए आते हैं और जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर शहरी बिरादरी में बहुत ज़्यादा तौर पर बसों का इंतज़ाम, ट्रेनों का इंतज़ाम और अदर अलग चीज़ों का इंतज़ाम होता है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर नकलो हरकत हमें शहरी बिरादरी में देखी जा सकती है। बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने काम के लिए और वहाँ से काम कर कर उस जगह से अपने घर पर लौटते हैं। यही नकलो हरकत बड़े पैमाने पर शहरी बिरादरी में देखा जा सकता है। इसके बाद है सानवी ताल्लुकात। शहरी बिरादरी में ज़्यादातर ताल्लुकात लोगों के सानवी दर्जे के होते हैं। यहाँ पर सामने के ताल्लुकात कम होते हैं। जैसे हम देही बिरादरी में देख चुके हैं कि ज़्यादातर लोगों के ताल्लुकात इब्तदाई ताल्लुकात होते हैं, लेकिन शहरी बिरादरी में ताल्लुकात सानवी दर्जे के होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर ही गुजारने की कोशिश करते हैं, अलहदा गुजारने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उनकी ज़िंदगी में शुमार हो, इसलिए वो ताल्लुकात को सानवी दर्जे के ही रखते हैं और किसी को भी अपनी ज़िंदगी में शुमार होने नहीं देते। अगला है मार्केट पर मबनी मईशत। शहरी बिरादरी की मईशत जो होती है वो मार्केट पर मबनी होती है।
ज़्यादातर लोग यहाँ पर मार्केट की वजह से ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट आसानी से यहाँ पर दस्तयाब होता है और मार्केट में मिलने वाली चीज़ों भी यहाँ पर आसानी से दस्तयाब होती है। इस वजह से लोग शहर में रहने को तरजीह देते हैं और यहाँ पर जितनी भी मईशत चलती है वो पूरी तरह से मार्केट पर ही मबनी होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत ये है कि वो मार्केट पर मबनी मईशत है। इसके बाद जदीद बुनियादी सहूलियात। शहरी बिरादरी में ज़्यादातर शहरों में हम देख सकते हैं कि बुनियादी सहूलियात जो है जदीद दर्जे की होती है। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आपको दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देंगी, सड़कों का अच्छा इंतज़ाम होगा, गंदे पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम होगा। इसके अलावा यहाँ पर गैस की पाइपलाइन आपको मिल सकती है, पानी की पाइपलाइन मिल सकती है, इंटरनेट का आपको आसानी से मुहैया हो जाएगा। इसके अलावा टेलीफोन आपको आसानी से मिल जाएगा। यानी जितनी भी बुनियादी सहूलियात है वो तमाम सहूलियात आपको शहरों में बआसानी मिल जाती है। इस वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि जदीद बुनियादी सहूलियत ये शहरी बिरादरी की एक खुसूसियत है। इनफरादी खानदान। इनफरादी खानदान शहरों में बहुत ज़्यादा पैमाने पर पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि शहरों में जगह की कमी होने की वजह से छोटे छोटे घरों में लोगों को रहना पड़ता है। इस वजह से लोग मुश्तरका खानदान को यहाँ नहीं रख सकते। दूसरी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग इनफरादी तौर पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और इनफरादियत में ही रहना पसंद करते हैं। इस वजह से भी लोग यहाँ पर इनफरादी खानदान को पसंद करते हैं। अगली खुसूसियत है तबकाती शऊर। तबकाती शऊर शहरी बिरादरी में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है। यहाँ पर लोग अपने ही तबके में रहना पसंद करते हैं। आला तबके के लोग आला तबके के साथ रहना पसंद करते हैं, दरमियाना तबके के लोग दरमियाना तबके के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और निचले तबके के लोग निचले तबकों के साथ ही उन्हें रहना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तबकाती शऊर जो है वो शहरी बिरादरी में दिखाई देता है। रस्मी समाजी कंट्रोल। समाजी कंट्रोल शहरी बिरादरी में रस्मी तौर पर होता है। यहाँ पर सिर्फ रस्मी तौर पर ही समाजी कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि देही बिरादरी में हम देखते हैं कि समाजी कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से लोगों पर मबनी होता है। लेकिन यहाँ पर समाजी कंट्रोल सिर्फ रस्मी तौर पर होता है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में कोई शुमार हो या उनकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का किसी का दखल हो। इसलिए रस्मी तौर पर ही समाजी कंट्रोल यहाँ पर होता है और रस्मी तौर पर ही समाजी कंट्रोल किया जा सकता है। मजदूरों की पेचीदा तकसीम। शहरी बिरादरी में मजदूरों की तकसीम जो है बहुत ही पेचीदा होती है। यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरोज़गार होते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल से किसी भी काम को मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से मज़दूरों की तकसीम जो है वो ज़्यादातर कंपनियां बड़े पेचीदा तरीके से करती हैं।
ज़्यादातर तालीम याफ्ता लोगों को और ज़्यादातर महारत रखने वाले लोगों को ही यहाँ पर मजदूरी दी जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शहरी बिरादरी में मजदूरों की पेचीदा तकसीम होती है। नाव फॉर मराठी। भारतीय समाजाचा परिचय या घटकाची सुरुवात आपण आधीच केली होती। आज जे आपल्याला बघायचं आहे ते आपले घटकाचा तिसरा घटक आहे, ते आहे शहरी व नागरी समाज व समुदाय। शहरी व नागरी समुदाय याची एक व्याख्या आपल्या पुस्तकामध्ये दिली गेलेली आहे, ते दिलेली आहे मरियम वेबस्टरनी। हे व्याख्या आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही लिहू शकता। त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचं आहे ते आहे शहरी समुदायाची वैशिष्ट्ये। याच्यामध्ये पहिला जे आहे बहुजिन्सीपणा। बहुजिन्सीपणा हे शहरी समुदायाची एक वैशिष्ट्य आहे। त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता की भिन्न भिन्न प्रकारचे व्यक्ती एका समाजामध्ये राहतात। त्यांची जात वेगळी असते, त्यांचे धर्म वेगळे असते आणि त्यांचे पंथ पण वेगळे असते, पण ते एकाच जागेवर राहतात। तर आपल्याला एकच समाजामध्ये बहुजिन्सीपणा दिसून येते, वेगळे वेगळे प्रकारचे लोक दिसून येते, भिन्न भिन्न प्रकारचे लोक आपल्याला दिसून येते। तर त्याला आपण म्हणू शकता की बहुजिन्सीपणा आढळून येते आपल्या शहरी व नागरी समुदायामध्ये। त्याच्यानंतर दुसरा आहे हाय डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन, लोकसंख्येची अधिक घनता। लोकसंख्येची अधिक घनता आपल्या शहरी समुदायामध्ये व नागरी समुदायामध्ये दिसून येते। कारण काय, एकच भौगोलिक भागामध्ये खूप जास्त लोक राहत असते आणि तिथूनच आपल्याला एकच जागामध्ये खूप लोकसंख्येची घनता दिसून येते, एकाच जागेवर खूप लोक दिसून येते। त्यालाच आपण म्हणू शकता की अधिक घनता लोकसंख्येची आपल्याला इथे दिसून येते आणि शहरी भागामध्ये लोकसंख्येची अधिक घनता असते। त्याच्यानंतर तिसरा जे आहे ऑक्युपेशन, भिन्न व्यवसाय। शहरी भागामध्ये भिन्न भिन्न प्रकारचे लोकांचे व्यवसाय असते। शहरी आपण बघलेला आहे, ग्रामीण भागामध्ये लोकांचा जे व्यवसाय असते फक्त शेती असते, पण इथे लोकांचे भिन्न भिन्न प्रकारचे व्यवसाय असते। उदाहरण आपण बघू शकता, कोणी शिक्षक असाल, कोणी डॉक्टर असाल, कोणी इंजिनियर असाल, कोणी कंपनीमध्ये मजूर असाल, तर असे भिन्न भिन्न प्रकारचे व्यवसाय करणारे लोक एकाच जागावर राहत असते। तर आपण त्याला म्हणू शकता की भिन्न व्यवसाय हे शहरी समुदायाची एक वैशिष्ट्य आहे। त्याच्यानंतर लार्ज स्केल सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलतेची अधिक घनता।
सामाजिक गतिशीलतेची अधिक घनता आपल्या शहरी भागामध्ये दिसून येते. ते आपण बघू शकता, लोक एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी खूप अधिक घनता व गतिशीलता आपल्या शहरी भागामध्ये दिसून येते. लोक आपल्या कार्य करण्यासाठी, आपल्या कंपनीमध्ये जाण्यासाठी, आपल्या कामाच्या ठिकाणावर जाण्यासाठी खूप गतिशीलता आपल्या शहरी भागामध्ये दिसून येते. त्यासाठी बस, त्याच्यानंतर रेल्वे, त्याच्यानंतर दुसरे आणखी आपल्या जाण्या व येण्यासाठी खूप प्रकार से आपल्याला गतिशीलता आपल्या शहरी भागामध्ये दिसून येते. म्हणूनच आपण बोलू शकता की सामाजिक गतिशीलतेच्या अधिक घनता आपल्या शहरी भागामध्ये आहे. त्याच्यानंतर सेकंडरी रिलेशन, दुय्यम नातेसंबंध. शहरी भागामध्ये दुय्यम नातेसंबंध असतात लोकांचे. आपण ग्रामीण भागामध्ये बघितलेलं आहे की ग्रामीण भागामध्ये लोकांचे जे नातेसंबंध असतात ते प्राथमिक असतात, पण इथे लोकांचे नातेसंबंध जे असतात दुय्यम पद्धतीचे असतात. लोकांना कोणीही आपल्या जीवनामध्ये येऊ असं वाटत नाही. त्यांना आपल्या जीवन आपल्या आधारित जगण्याची पद्धत असते. म्हणूनच तेथे नातेसंबंध जे असतात फक्त दुय्यम पद्धतीचे असतात. त्याच्यानंतर बाजारपेठ आधारित अर्थव्यवस्था. बाजारपेठ आधारित अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था जी असते शहरी भागाची व नागरी भागाची ते बाजारपेठवर आधारित असते. लोक तिथे राहण्याचा प्रयत्न असंच करत नाही, त्यांना फक्त आपल्या बाजारपेठचा उपलब्धता पाहिजे आणि बाजारपेठामध्ये जे वस्तू त्यांना मिळवायची आहे ते वस्तू त्यांना आरामात भेटू यांचीच त्यांची हे धोरण असतात. म्हणूनच ते बाजारपेठमध्ये राहण्याची प्रयत्न करतात आणि म्हणूनच ते शहरी भागामध्ये राहण्याचा प्रयत्न करतात. तर ते अर्थव्यवस्था जे असते ते पूर्णतः अवलंबून असते, बाजारपेठवर आधारित असते. त्याच्यानंतर आहे सुधारित पायाभूत सोयी सुविधा. पायाभूत सोयीसुविधा हे उच्च पद्धतीचे असते शहरी भागामध्ये. आपण उदाहरण बघू शकता की इथे शॉपिंग मॉल, मोठे मोठे बिल्डिंग, त्याच्यानंतर रस्ते, त्याच्यानंतर पाण्याची पाईपलाईन, गॅसची पाईपलाईन, त्याच्यानंतर आपल्या येण्या व जाण्यासाठी खूप प्रकारचे रेल्वे व बस उपलब्धता असते. तर आपण बोलू शकता की इथे पायाभूत सोयीसुविधा जे आहे ते खूप उच्च पद्धतीची असते. ते एक त्याची वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर फॅमिली, विभक्त कुटुंब. शहरी भागामध्ये विभक्त कुटुंब असतात. त्याच्या मागे कारण असं आहे की लोकांचे घर जे आहे खूप छोटे असतात. त्यामध्ये ते संयुक्त कुटुंब राहत न असले तर तिथे विभक्त कुटुंब राहतात आणि लोकांना आपल्या जीवनामध्ये कोणीही इंटरफेअर नको करू असं वाटत असते. तर त्यासाठी ते विभक्त कुटुंबमध्ये राहण्याचा प्राधान्य देते आणि विभक्त कुटुंबमध्येच राहतो. तर विभक्त कुटुंब जे आहे ते
शहरी भागाची एक वैशिष्ट्य आहे. वर्गीय जाणीव. लोकांमध्ये वर्गीय जाणीव असते शहरी भागामध्ये. ते आपल्या वर्गामध्ये राहण्याला प्राधान्य देतो. उच्च वर्ग जे लोक असतात ते उच्च वर्गाचे भाग जे असतात तिथेच राहण्याला प्राधान्य देतो. मध्यम वर्गाचे लोक जे असतात ते मध्यम वर्गामध्ये राहण्याला प्राधान्य देतो. आणि निम्न वर्गाचे जे लोक असतात त्यांना निम्न वर्गाचे लोकांमध्येच राहायला लागते. तर वर्गीय जाणीव हे आपल्या शहरी भागाची, भारतीय शहरी भागाची एक वैशिष्ट्य आहे. औपचारिक सामाजिक नियंत्रण. सामाजिक नियंत्रण जे असते फक्त औपचारिक असते. कारण त्याचा एक असा आहे की त्याच्यामध्ये सामाजिक नियंत्रण फक्त औपचारिक पद्धतीचंच असते. त्याचा कारण असं आहे की लोकांना समाजामध्ये राहण्यासाठी आपला नियंत्रण तसंच ठेवायला लागतो. त्याच्यानंतर श्रमांच्या गुंतागुंतीचे विभाजन. श्रमांचे विभाजन इथे गुंतागुंतीचे असते. कारण शहरी भागामध्ये खूप जास्त लोकसंख्या राहत असते. तिथून लोकांना रोजगार मिळत नाही, तर ते कोणताही कार्य करण्यासाठी इच्छुक असतात. तर ते शिक्षण उच्च असल्यावर व शिक्षण पद्धती व त्यांना श्रमांचा कार्य बघता त्यांच्या श्रमांच्या गुंतागुंतीचं विभाजन केला जातो. तर तिथेच आपला व्हिडिओ संपत आहे. धन्यवाद.